Hello student, let us continue topic number 3rd of chemistry 1. Let us see what is it. Topic 3rd, that is the ionic equilibrium. In that, let us see first question. As you know that we already discussed the point. I say question mark. I say, what is ionic equilibrium or equilibrium? Now see the word. What is ionic equilibrium? Ionic equilibrium म्हणजे काय? Question mark. Explain types of electrolytes with example. ठीक है? तो let us see one by one here. पहला हम कसम करेंगे ionic equilibrium क्या होता है? Ionic equilibrium. इक्विलिब्रियम क्या है? देखो बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम. Here, see here, as you know, sign that rate of forward reaction, rate of backward reaction. We just go through what point of view. Equilibrium और equilibrium singular body, singular एक वचन, singular एक वचन, ठीक है एकदा. आणि equilibrium, now see the word equilibrium, the plural word. ऐसे प्लूरल अनेक वचन प्लूरल. और जो आपको साइन दिखाई दे रहा है ऐसे रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैक रिएक्शन, इसका मतलब इक्विलिब्रियम साइन. ये कब क्यों और कैसा होता है देखिए, इसकी डेफिनेशन देखो, बहुत सिंपल सा पार्ट है. जो इनसोल्युबल सब्सटेंस रहते हैं, अनडिसॉल्व सब्सटेंस रहते हैं, तो उसके बारे में जब सब्सटेंस डिसॉल्व होने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे रिएक्टर भी मिलता है, प्रोडक्ट भी मिलता है. मतलब नॉट एग्जैक्टली रिएक्टर, नॉट एग्जैक्टली प्रोडक्ट, but in between these two condition, that in between these two reactant product, that is called equilibrium. ठीक है? So what I say, see the definition here. The equilibrium between ions and unionized molecule in a solution is called ionic equilibrium. Got it? Correct. Here, see the statement. Here, the equilibrium between ions and unionized molecule in a solution is called, I say, ionic equilibrium. तो मैं क्या ऐसे सिंपल सा डेफिनेशन से मतलब इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस, कैटायन और एनायन ऑन द प्रोडक्ट साइड and unionized molecule यानी कि reactant है, undissolved substance and dissolved substance, उनके बारे में हमको जो भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा उसको बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम. वहाँ पे आयंस इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे आपको पता है इन अ मोल्टन स्टेट आयंस NaCl, एक्वियस स्टेट इक्विलिब्रियम टू फॉर्म Na+Cl-N. ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं. ये सिंपल सा पार्ट है. अब इस टॉपिक में हम बहुत सारे सॉल्ट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड, बेस, उसका बारे में देखेंगे जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, उसके बारे में देखेंगे. So whenever the substance comes in under the questions, I say under the point weak electrolyte, so that equilibrium sign should be there. That maybe weak acid, between maybe weak acid, maybe weak base, or maybe that salt here, sparingly soluble salt. ठीक है? Okay, next question is here attached to here. This part electrolyte. तो electrolyte क्या होता है देखो इसके बारे में. देखो सिंपल सा पार्ट. ऐसे electrolyte. Electrolyte माने ऐसा substance, देखो ऐसा substance here, the substance which gives rise to ions when dissolved in water. मतलब जो सब्सटेंस हमें आयन निर्माण करके देता है या बताता है या दिखाता है, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट. I repeat what I see here. A substance which gives rise to ions when dissolved in water is called, I say, electrolyte. क्या बोला आपने? सिंपल सा डेफिनेशन देखो इधर. Here, the substance और वैसे आने के बच्चे substances which gives rise to ions when dissolved in water, are called, I say, electrolytes. ऐसे सिंपल सा डेफिनेशन. Understood? Are called electrolytes. Are called electrolytes.
सिंपल सा डेफिनेशन का बहुत सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट है। मतलब जो सब्सटेंस पानी में डिजोल्व होने के बाद हमें आयंस देता है, आयंस निर्माण करता है, आयंस मतलब कैटायन एनायन, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन हियर, वन मोर कांसेप्ट आई read over here, we are going to know. I say non-electrolyte, इसके एकदम अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन सब्सटेंस। ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट substances which do not ionize, देखो क्या बोला पे, the substances which do not ionizes and exist as a molecule in a solution or in a water is called, I say, non-electrolyte. What I see here, the substances which do not ionizes, see what beta, ionizes and exist as a molecule in water is called, I say, non-electrolyte. ठीक है। ऐसे सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से बहुत इजी है, बहुत ही मतलब लूसिड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो मैं क्या, ऐसा सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंस आयोनाइज नहीं देता हमको, आयोनाइज नहीं होता, वो अनआयोनाइज फॉर्म ही रहता है, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म ही रहता है। हम उस सब्सटेंस को वाटर में लेते हैं तो वाटर में उसका एग्जिस्टेंस, देखो उसका एग्जिस्टेंस कैसे रहता है, एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, नॉट आयनिक फॉर्म। तो सब्सटेंस का हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आई विल गिव एग्जांपल टू यू, प्रैक्टिकल एग्जांपल। इफ यू रिमेंबर शुगर मॉलिक्यूल, यू नो शुगर मॉलिक्यूल, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, यूरिया dissolved in water, glycerin in water. So these substances are nothing but I say that's a molecular state over here in case of aqueous condition. Understood? And those substances you remember, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, जो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व होने के बाद हमें आयंस मिलता है, आयंस मतलब क्या, कैटायन एनायन, उसका हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है। सो नेक्स्ट वहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको अटैच करके बोला है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक हमने इलेक्ट्रोलाइट एक्सप्लेन किया है, लेकिन टाइप्स कौन से इलेक्ट्रोलाइट वो देखते हैं। ठीक है। ऐसे सिंपल सा स्टूपिड सा क्वेश्चन से प्रिपेयर करके रखा है स्टेट बोर्ड के लिए। चलो देखते बेटा, स्क्रीनशॉट निकाल लगा, आराम से देख लो, आराम से देख लो। अगर इधर हो गया तो मैं आगे चलूँगा। इधर का भी हो गया तो ये भी रख कर आराम से लिखो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, क्या क्या उस डेफिनेशन में वर्ड इन्वॉल्व किया उसको देखो। ठीक है। चलो देखते हैं फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है उसके बारे में। और बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही लिखने का। ठीक है। लर्निंग राइटिंग। चलो देखते बेटा क्या है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Sorry. Chalo. Now see the heading. Under the heading we can mention over here types of electrolyte here. I say types of electrolyte. उससे कौन से प्रकार है, किसके मेरे नहीं इलेक्ट्रोलाइट्स वो देखो। तो यहाँ पे एक साइंटिफिक व्यू है, क्या है देखो, there are two types of electrolyte or they are classified into strong electrolyte and weak electrolyte on the basis of extent of ionization. ठीक है। उसके बेस के आधार पर उनका आयनाइजेशन होता है या नहीं होता है, उसके बेस के हमने इसे मतलब ये उसका दो क्लास बताया। क्या बोला मैं देखो जरा, they are classified into I say strong electrolyte and weak electrolyte. ठीक है। on the basis of extent of ionization
एक्सटेंट ऑफ ऐसे आयोनाइजेशन, ठीक है। तो उनका आयोनाइजेशन होता है कि कितने तौर पे होता है उसके हिसाब से। तो दो प्रकार के होते हैं, लेट अस सी वन बाय वन। पहला हम देखते हैं, उसका नाम है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता काय याचा अर्थ, चलो क्या क्या इसका मीनिंग क्या है? या द सब्सटेंसेस which ionizes completely or almost completely, जो सब्सटेंस उसका आयोनाइजेशन होता है कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली, यानी कि पूरा का पूरा वो उसका आयोनाइजेशन होता है, उसका हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई रिपीट, क्या बोला बेटा, क्या बोला, देखो बेटा क्या बोला है, हियर द सब्सटेंसेस which ionizes completely, देखो completely or almost completely, almost completely are called I say strong electrolyte, strong electrolyte। देखो सिंपल से देखो, मतलब जो सब्सटेंस उसका आयोनाइज होता है, आयोनाइज होता है कंप्लीट आयोनाइज होता है, तो ऑलमोस्ट उसका आयोनाइजेशन होता है कंप्लीटली ऐसे आयोनाइज, सॉरी लोगों को भूल गया मैं यहाँ पे, व्हाट कंप्लीटली आयोनाइज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखते हो उसके एग्जांपल क्या क्या, देखो इधर ये लाइन में देते हैं, देखो इधर आइए पॉइंट नंबर सेकंड प्रैक्टिकल एग्जांपल। नाउ सी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अब आपको पता है क्या है बेटा, HCl है, H2SO4 है, ठीक है, याद रख गया ये पहले के देखिए। उसके बाद HNO3 है, अगर आपको याद होगा, एटसेट्रा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस है, यू नो स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH है, KOH है। उसके बाद सॉल्ट, यू नो सॉल्ट, जस्ट लाइक NaCl हमारा पहले में टेबल सॉल्ट, कार्बन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, NaCl। उसके बाद KCl है, Na2SO4 है, एटसेट्रा। तो इस तरह से आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे। और एक बात, बोर्ड के एग्जाम में कम से कम एक या दो एग्जाम्पल लिखने का, ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सा एग्जाम्पल किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ द वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, ऐसे सेकंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या मान रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो क्या है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या है देखते मान, देखो सिंपल सा पार्ट है द इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेटा क्या बोला पे, द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आयोनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। देखो और हम इसे द सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन अ वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब उनका आयोनाइजेशन होता है लेकिन बहुत कम प्रमाण में, मतलब बहुत ही कम प्रमाण पे हम उसका, मतलब हमको उसका आयन मिलते हैं, बहुत ही रेयर अमाउंट है एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन का 100% डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे वीक इलेक्ट्रॉन का बहुत ही रेयरली, बहुत ही मतलब कम होता है, तो उसका हम बोलेंगे ऐसे वीक इलेक्ट्रॉन। व्हाट आई से सी द वर्ड, वर्ड मैंने यहाँ पे क्या बोला बेटा, देखो यहाँ पे देखो वर्ड पे ध्यान दो, क्या बोला मैंने यहाँ पे वर्ड पे डेफिनेशन, ऐसे the electrolyte which dissociate to very small extent, the substances, देखो the substances which dissociate to smaller extent, ऐसे small extent और smaller extent in aqueous solution। देखो वर्ड कैसे समझो, in aqueous solutions called weak electrolyte। तो मैं क्या, मैंने शॉर्टकट किया weak electrolyte, W stand for, W का मीनिंग क्या होता है, W means weak, E means electrolyte। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब इससे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या करेंगे यहाँ पे, रिमेंबर इन ए weak acid, weak base and some salt, कैसे देखो क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या सीखे हैं, ऐसे weak then what is what
वीक एसिड एग्जांपल दे बेटा, क्या है एग्जांपल? ऐसे H2CO3, formic acid, as you know that, acetic acid, etc. ठीक है? Now weak bases, what weak bases? ऐसे NH4, OH, magnesium hydroxide, ठीक है, etc. And salt, you know salt, you will remember salt, you know salt just like a barium sulfate, zinc sulfate, ठीक है, etc. तो ऐसे कुछ एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट के और वीक इलेक्ट्रोलाइट के, जस्ट सिंपली कीप इन माइंड, आपको यहाँ पे एग्जाम में इस तरह से एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, ठीक है? वीक एसिड, वीक बेस, सॉल्ट, इधर भी सॉल्ट इधर भी सॉल्ट, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैसे कम्स ऑन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दिस सॉल्ट कम्स ऑन एग्जांपल ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 comes an example of a weak electrolyte. So these are theoretical parts related with the IC electrolyte. So let us see one more point. It's very interesting one. Here addition of these questions. Question number next. We'll see what is it. ठीक है? देखते बेटा क्या है. एक सिंपल सा पार्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, देखते होते हैं. उसको अच्छी तरह से लिख लो आराम से. कोई डाउट है तो पूछने का. ठीक है? ओके. तो देखते हैं one more concept, one more definition, that is called ऐसे degree of dissociation. जो कि हम उसको पहले देखा था, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारे टॉपिक नंबर 2 में. देखते हैं कि क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है और उसका एक्सप्रेशन क्या है. देखो बहुत सिंपल सा पार्ट से बहुत ही इजी है. एग्जाम में क्या करना है? डेफिनेशन और एटलीस्ट एक दो एग्जांपल, ज्यादा एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं वहां पे, लेकिन सीटी में नीट में जेडब्ल्यू में आ सकता है एग्जांपल. अलग डायरेक्टली मत लो. चलो देखते हैं. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? एक्सप्लेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. व्हाट आई से? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. देखते हैं. So let us say under the heading, simple सा concept है mathematical part. I say degree of dissociation. Degree of. So some science बताते हैं notation ऐसे alpha. Remember alpha sign? You know alpha sign in alpha, beta, gamma, Greek letter. उसके बाद तो देखते हैं क्या है degree of dissociation क्या होता है. Simple सा part है देखते हैं. पहले उसका definition. You know definition? So see here. It is defined as the fraction of. It is defined as a fraction of per moles, or it is defined as a fraction of total number of moles of electrolyte that dissociated. एक मिनट इसको देखते बैठ थोड़ी देर में. एक वेट.